कोई जो रोने की बात नहीं रहेगी, छाती पीटने की बात नहीं रहेंगे। The Lord will come in the clouds. यीशु मसीह बादलों में आने वाला है, and only believers will see him. और केवल विश्वासी लोग उनको देखेंगे, and we will go up. और हम ऊपर उठा लिया जाएगा। And the unbelievers who are left here, और जो विश्वास नहीं किए वे लोग बाकी रह जाएंगे। they know only one thing. वे लोग केवल एक ही बात जानते हैं। Sardar is missing, Vinod Bhai is missing, and Joey David is missing, and Reggie Bhai is missing. Some people are missing. That is only they know. कुछ लोग गायब हो गए हैं, जो सरदार भाई, रजी भाई, जो सर, विनोद भाई, ऐसे हम जो विश्वासी लोगों का जो बारे में, जो उन लोगों का वो लोग गायब हो गया, उतना ही है। And after 7 years we are in the heaven. और 7 साल हम स्वर्ग में बिताने के बाद में, when the Lord comes down with his saints to rule the earth, जब इस धरती पर राज्य स्थापित करने के लिए यीशु मसीह अपने दूतों के लोगों के साथ आने वाला है, तब then who are on this earth now? That time. उसी समय धरती पर कौन-कौन बाकी रहते हैं? Many unbelievers. बहुत सारे अविश्वासी लोग। Many who came to faith during these 7 years. और वो ये भी रहेंगे इन 7 साल में सुसमाचार सुनने के द्वारा प्रभु में आए। The majority of Jews will be saved by that time. और यहूदियों में अधिकांश लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। Many non-Jews also will be saved. और गैर यहूदी लोग भी बहुत से प्रभु में विश्वास करने वाला है। So when Jesus comes in his glory, every person on this earth will see him. जब प्रभु अपने महिमा के साथ में इस दुनिया में आएंगे, सब लोग देखने वाला है। Every believer will see, every unbeliever will see. सब विश्वासी लोग भी देखेंगे और अविश्वासी लोग भी देखेंगे। A believer will be because of joy. और जो विश्वासी लोग खुशी में रोएंगे, they will shed tears of joy because they are receiving the king. वो इसलिए रोएंगे कि वो अपने जो राजा महाराजा के स्वागत कर रहे हैं। So that weeping is out of joy and expectation. वो जो खुशी, वो रोना वो खुशी से निकलने वाला है, एक प्रतीक्षा के और से निकलने वाला है। And those unbelievers in the Jews and those unbelievers of non-Jews will weep. और जो यहूदियों में से और गैर यहूदियों में से विश्वास नहीं किया, इनकार किया, वे लोग रोएंगे। And the non-Jews who are not believed also will weep. गैर यहूदी लोग जो विश्वास नहीं किया, वे लोग भी रोएंगे। They weep because there is no more way of salvation. They will face judgment and they will die. वे इसलिए रोएंगे कि उनके आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उनके आगे केवल दंड की आज्ञा है। Is it clear now? You can ask them. मुकेश, आपने प्रश्न पूछा कि? Yes, sir. क्लियर हो गया क्या? Clear. Okay. Yes, clear हो गया। Sir, Joy sir, I have a doubt. Joy sir, can I ask? Yes, can please. I ask one more? Acha, okay. So Yes, please. after the church is removed from here, so now in the coming next 7 years, many are going to believe in the gospel. But I was asking, who is going to preach? Thousands but and thousands. We will study about it. Yes. In chapter 7, there are 144,000
Jewish evangelists in the whole world. Oh, okay. Then chapter 11, there are 2 witnesses evangelizing Jerusalem and surrounding area. Okay. Then at the end of the 7 year, 3 angels are evangelizing. Unusual angels are evangelizing. Through all these means, a countless number will turn to the Lord. In fact, the greatest harvest of souls, such a brief period, 7 years will happen that time. That is a very peculiar area. Okay. Thank And some people believe that there is no Holy Spirit. Without the Holy Spirit, how people can be saved? you. Right. Okay, these things I will tell later. Okay. Okay. Now we'll go to 9, verse 9 onwards. हम 9 आयत से आगे बढ़ेंगे। मैं यूहन्ना 9 आयत हाँ पढ़ू क्या? I will tell what to read. In 9 to the rest of the chapter up to verse 20. 9 से 20 तक आयत में What is mentioned is a glorious vision of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का एक महिमामय दर्शन का विवरण हमें इधर मिलता है। When the Lord Jesus came to this earth as a man, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक मनुष्य के रूप को पूरी तरह प्रकट नहीं किया, but here he wants the church to see his glory. यहाँ प्रभु चाहते हैं कि अपनी कलीसिया अपनी महिमा को पूरी तरह देखें। And what is the importance of this vision to John? और यह दर्शन यूहन्ना के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? They have to understand that the Lord whom they believe is not an ordinary king. He is a King of kings and Lord of lords with all sovereign power and glory. वे लोग ये बात को समझना है कि जिस पर उन्होंने विश्वास किया है वो व्यक्ति केवल एक साधारण नहीं है, वो दुनिया के पूरे शासक है। John the Apostle had a unique privilege when he was living on this earth, when Jesus was living on this earth in his human body. तो यूहन्ना के लिए एक खास उपलब्धि मिला। He has the freedom of leaning on the breast of Jesus when sitting together with him. जब चेलाएं सब इकट्ठे होते थे, बैठकर बात करते, खाना खाते, उसी समय यूहन्ना यीशु मसीह के सबसे निकट बैठते थे और उसके जो कंधों के और छाती की ओर वो अपने सिर रखते थे। But when Jesus shows this vision about himself, जब यह दर्शन यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना को मिला, Apostle John falls down as if he is dead. और यह दर्शन जब मिला उसी समय उसने गिर पड़ा, मानो वो मर गया। We will read 9 to 11 first. 9 to 11. 9 से 11 हम पहले पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के देश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सौभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा यह कहते जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के भेज दो, तथा स्मुरना और पेर्गमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया को। Apostle John was the
the only apostle living at that time. यूहन्ना दूसरा खास उपलब्धि भी था, वो उसी समय रहने वाला एक ही प्रेरित बाकी था। And he was, his center was Ephesus, and he was helping the church. दूसरे कलीसियाओं में भी जाते थे। But Domitian exiled him to island of Patmos because he wanted to persecute the रोमी churches. महाराजा डोमिनिशियन ने यूहन्ना को जो वो वहां से उनको दंडाज्ञा दिया और उसको पात्मोस नाम में द्वीप में भेज दिया। उधर उनको जेल की जैसा रखा दिया। This is a small island full of rocks. ये जो द्वीप है वो चारों ओर पानी वाले जगह को द्वीप कहलाता है और यहाँ केवल पत्थर ही है। And those who are deported there, the prisoners, will be put to very hard work. वो उसी जगह में भेजा जाने वाले जो कैद है, कैदों को कठिन मेहनत करना पड़ता है। Mostly they will have to break stones and chisel them out for buildings. वहाँ के जो बड़े बड़े पत्थर के ऊपर जो काम करना पड़ते हैं तो वो बहुत कठिनाई उनको सामना करना पड़ता है। And you can understand the sorrow in the heart of Apostle John. और हम इसलिए हम समझ सकते हैं यूहन्ना के मन में कितना दर्द रहा। I am the only apostle. I am not at all available now. I am away from all my churches. अभी 12 यीशु मसीह के 12 चेलों में प्रेरितों में से मैं इतना ही बचा हूं और मैं भी अभी है ना लोगों के बीच में नहीं है, विश्वासियों के बीच में नहीं है, इसी जो द्वीप में कैद करके रखा गया है। No communication because there was no phone or no internet, nothing there. तो आज के जमाने के जैसे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, फोन की सुविधा नहीं है, कोई तरह के वार्तालाप अपने विश्वासियों के साथ में नहीं होता। And there was pain in his body, pain in his mind, and agony in his soul. शरीर में और मन में और आत्मा में बहुत दर्दनात्मक स्थिति। This had happened to every servant of God sometime. और परमेश्वर के हर भक्त सेवक को ऐसी जो स्थिति में से कभी न कभी गुजरना पड़ सकता है। I do not know any true servant of the Lord who does not have some kind of pain, some kind of agony, agonizing years they have not gone through because of the ministry. तो ऐसा कोई भी भक्त सेवक इस दुनिया में नहीं होगा जो अपने जीवन के काल में कुछ न कुछ समय में दर्दनात्मक स्थिति में समस्याओं से गुजरना ना पड़ा। But how does John describe his trouble? लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना अपनी जो समस्या का विवरण कैसे देते हैं। Verse 9, I am your brother. 9वां आयत में हम बोलते हैं मैं I यूहन्ना love you. I love you. You love me because we belong to the same family. मैं आपसे प्रेम करते हैं, आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। You are in trouble. I am in trouble. I am a partner to you. आप लोग भी मुसीबत में भी है, मैं भी मुसीबत में क्लेश में है और क्लेशों में हम सहभागी हैं। Now we take part, share the troubles. हम क्लेशों में अभी मिलकर सहभागी हो रहे हैं। But remember that the kingdom is coming. The kingdom of God, the glorious kingdom also we will share. लेकिन अभी परमेश्वर का जो महिमा में राज्य भी आने वाला है, उस राज्य का भी हम सहभागी होने वाला है।
till that kingdom comes, we have to patiently endure the suffering. जो परमेश्वर का उस राज्य का स्थापना जब तक नहीं होगा तब तक हमें इस क्लेश में से गुजरना ही पड़ेगा. And who will give us endurance? और वो जो उस क्लेशों को धीरज के साथ में सामना करना पड़ रहा है और वो धीरज हमें कहाँ से मिलेगा? The Lord Jesus will come close to us and give us endurance. यीशु मसीह हमारे निकट आकर हमें धीरज देने वाला है. So this is how John look at his trouble. तो इस तरह यूहन्ना अपने क्लेश की ओर देखता है. He does not say that it is Domitian who arrested me and put me here. वो उसी तरह नहीं बोल रहे कि महाराजा डोमिनिशियन ने मुझे गिरफ्तार करके यहाँ कैद करके रख दिया है. But verse 9 he says, I came here on account of the word of God and testimony of Jesus Christ. वो बोल रहे परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण मैं पत्मोस नामक टापू में आ गया है. Our dear brother Charlie John was in jail for a few days and his two brothers. हमारे जो प्रिय चार्ल्स अंकल जो आगरा में रहकर सेवा करने वाला, वो अभी 5 दिन तक जेल में रहा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण. अभी वापस वो बाहर आ गया है, मिला है. And why was it? वो क्यों उसको जेल में जाना पड़ा? On account of the word of God and the testimony of Jesus Christ. परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु मसीह के गवाही देने के कारण. And that is what John also is telling. यूहन्ना का कहना भी वही. And Apostle Paul used to say, a prisoner of the Lord Jesus Christ, not a prisoner of the Roman Caesar. जब भी पौलुस अपने परिचय देते थे, मैं परमेश्वर का एक दास हूं, एक परमेश्वर के कैद, ऐसा बताते थे. Oh dear brothers, you have your own troubles in serving the Lord. ए प्रिय भाई, आप लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने में, सेवा करने में कई तरह की कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है. But to suffer these things के कारण और यीशु मसीह के गवाही देने के कारण. and today the Lord Jesus is near us, giving us endurance to suffer. और यीशु मसीह हमारे निकट आकर हमें धीरज प्रदान कर Wait for us. और हमारी इंतजार कर रहे हैं. And the Domitian will have no part in that kingdom. और महाराजा डोमिनिशियन को नहीं. So now let us comfort each other, इसलिए हम एक दूसरों का आश्वासन because we are देना brothers and we are partners in the tribulation for Jesus Christ. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के कारण भाई लोग हैं और सहभागी. So what a beautiful way to face our difficulties that we endure before the इतने Lord. बड़े सौभाग्य है हमारे सामने आने वाले समस्याओं को एक धीरज के साथ, खुशी के साथ सामना करना. And verse 10 says that on Sunday he was in meditation. 10वां आयत में हम पढ़ते हैं प्रभु के दिन अर्थात रविवार को वो प्रभु के वचन, प्रभु के बारे में मनन कर रहा था. The first day of the week is called Lord's Day because Sunday Jesus rose from the dead. रविवार को प्रभु के दिन इसलिए कहलाता है कि उसी दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा. And he was in the spirit on the Lord's Day, verse 10.
और हम यहाँ पढ़ते हैं रविवार के दिन वो पवित्र आत्मा में आ गया। In the Spirit means he was given a special filling of the Holy Spirit to see and write what he was going to see and hear. यह आत्मा में आ गया, इधर उसका मतलब ये है कि यूहन्ना को ऐसा एक खास वरदान उसी समय मिला, उसके एक फीलिंग जो पवित्र आत्मा की ओर से जो भराए जाना हुआ है, जो उसी समय का जो उसका ड्यूटी, जो कर्तव्य उसको करना है, जो परमेश्वर जो दिखाएगा वो अच्छी तरह और विश्वासी योग्य तरीके में लिखना। And he was praying and a great trumpet sound came from behind. और वो प्रार्थना कर रहा था, तब ऐसा एक बड़ा शब्द And then सुनने the में voice said, write down what you see. वो कहने वाला ऐसा बताया, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखो। And he has to turn back and see the Lord Jesus Christ in his glory. और वो मुड़कर यीशु मसीह के जो महिमा को देखा। Verse 12 and 13. Please read 12 and 13. 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए। The Son of Man, the word is taken from book of Daniel. मनुष्य का के पुत्र, ये जो शब्द दानियल के पुस्तक से लिखा गया है, लिया गया है। Means that Jesus is the Son of God. वहां दानियल के पुस्तक में मनुष्य के पुत्र का अर्थ है वो परमेश्वर का पुत्र। It also has a meaning. Jesus became a man. और उसके लिए ये भी अर्थ है कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्य बन गया, इसलिए मनुष्य के पुत्र। But the main meaning of Son of Man is the Lord Jesus, who is God. लेकिन मनुष्य के पुत्र जो शब्द का मुख्य अर्थ है वो परमेश्वर के पुत्र है या परमेश्वर के तुल्य है। And he is among the lampstands, that is the churches. और वे 7 दीवटों के बीच में, अर्थात कलीसियाओं के बीच में। His cloth is a long robe with a golden sash around his chest. उसके पटुका के बारे में हम इधर विवरण देखता है, पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए। It shows his royalty and also his priesthood. वो उसको राजत्व को और याजक है उस बात को दिखाता है। वो पांवों तक का वस्त्र उसका चिन्ह। Jesus is a king as well as high priest. यीशु मसीह राजा भी है और महायाजक भी है, महाराजा और महायाजक। Then verse 14. Please read 14. 14वां आयत हम पढ़ेंगे। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाल के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। This also is taken from the book of Daniel, which shows that hairs of head that is white means he is eternal. He is eternal God. ये वचन भी दानियल के पुस्तक से लिया गया भाग है। सिर और बाल श्वेत ये बात को दिखाता है कि वह सनातन परमेश्वर है, जो अनंत काल तक, शुरू से पहले से अंत तक के जो इटर्नल गॉड है, सनातन परमेश्वर।
and also it shows his purity. और ये उसको भी दिखाता है वो उसके जो पवित्रता है. And his eyes are like flames of fire. That means like a laser beam. His eyes goes to every secret, everywhere in the universe. उसके आंखें आग की ज्वाला के समान है. उसका मतलब ये है कि वो सब बातों, दुनिया के सब बातों को देखने वाला है. And his feet like, verse 15, his feet like burnished bronze, refined in a furnace. 15वां आयत में ऐसा हम पढ़ते हैं, उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो. And furnace like bronze was used. I mean, this kind of bronze was used in the altar of Lord's temple. उसी तरह के उत्तम पित्तल परमेश्वर के मंदिर में इस्तेमाल किया जाते थे. So blazing bronze usually refers to the judgment of God. ये जो ऐसे तपाया गया उत्तम पित्तल ये एक दंड का चिन्ह है. A bronze altar refers to the judgment of God for sin. एक पित्तल के वेदी जो परमेश्वर के दंड का चिन्ह है. Here he says his feet were like burnished bronze. हम ऐसा लिखा है उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे. That means he is able to judge the world, judge and defeat the enemies. इसका मतलब यह है अपने जो शत्रुओं को न्याय कर सकते हैं और उसको अपने पांव तले कर सकते हैं. He will even judge Domitian and all the enemies of the gospel. वो यीशु मसीह जो महाराजा डोमिनिशन के ऊपर भी राज करने वाला, उसको भी अपने पांव तले करने वाला है. दुनिया भर के जितने भी शासक है जो उनको विरोध करते हैं, उन सबों को अपने पांव तले कर देते. At the same time, he will judge the sins of the believers also. वो ये भी अर्थ है वो जो विश्वास करने वाले व्यक्तियों के जो वो उसका भी दंड देने वाला है. And then says his voice was like the roar of many waters. और उसके अंकल एक मिनट है वो जो अभी जो उसके पहले जो बड़ा पॉइंट एक और बार बता सकते हैं. ये जो पित्तल के उत्तम पित्तल के समान के विश्वासियों के लिए. So can you explain once He more? will judge he will judge the sins of the unbeliever. In the present, isn't it? Yes, present. Yes, present. It's only a chastisement. Out of love. जो उत्तम पित्तल के बारे में बताया है वो विश्वासियों के लिए भी जो ताड़ना का चिन्ह है. और हम उसके बाद में हम 15 आयत का आगे का भाग में ऐसे पढ़ते हैं, उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था. That means his sound, his voice must be heard above all other voices of all people. इसका मतलब ये है जितने भी कोलाहल इस दुनिया में हो रहा है, जिनके आवाज इधर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन उन सब जो शब्दों के ऊपर प्रभु का आवाज सुनाई. Have you ever visited a big waterfall? वाटरफॉल हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बता सकते हैं? वाटरफॉल्स जहाँ पानी बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरते हैं उसको वाटरफॉल कहलाता है. ऐसे कोई झरना. झरना झरना वो अलग है. झरना नीचे से भी हो सकता है ना.
ये जो Anyway, when there is a lot of water coming, we can listen only to the voice of the water. No other voice is possible. हाँ, जब ऐसे बहुत ऊंचाई से जो पहाड़ों के ऊपर के जो पानी जब नीचे गिरते हैं, वो बहुत बड़े आवाज में, भयंकर आवाज में शब्द आता है, और वो आवाज के सामने दूसरे भी कोई आवाज सुनाई नहीं देता, उसी तरह का आवाज। In other words, listen to this. In other words, the voice of all other voices. ये दूसरे जितने भी आवाज है उसको बंद कर देते हैं। That's why we read the Bible very often. इसलिए हम प्रभु के वचन बार बार पढ़ते हैं। Oh, people say that, government say that, newspapers say that, WhatsApp say that, but we have to listen to the Lord's word first. लोग बोलते हैं ऐसा, जो शासक लोग ऐसे कहते हैं, व्हाट्सएप में ऐसे आया है, तो वो सब आएंगे, लेकिन हमें क्या सुनना है, परमेश्वर के वचन क्या कहता है, परमेश्वर का शब्द कैसा है। And how is his word? Verse 16. Like his mouth, the word comes like a two-edged sword. और परमेश्वर का वचन कैसे है, वो 16 आयत में पढ़ते हैं, दोधारी तलवार है जो यीशु मसीह के मुंह से निकलती है। Verse 16 says, in his right hand are held 7 stars. और दाहिने हाथ में 7 तारे हुए, ऐसा भी लिखा है। These stars means messengers of the church who had to give word of God to the church. People who give word to the church, they are called as stars. 7 कलीसियाओं के दूध है, 7 दूध है जो कलीसियाओं के लिए जो संदेश ले जाते हैं। And how is his face? Sun shining in मुंह कैसा fullness. है? उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। When the sun is rising at mid-noon, we cannot look at at the sun with our दोपहर के naked समय, eyes. कड़ी धूप के समय हम सूर्य की ओर देख नहीं पाता, उतना प्रज्वलित। And the face of Jesus Christ is glorious, like a sun, more than a sun. यीशु मसीह का मुंह सूर्य के ज्वाला से भी बढ़कर है। Then seeing this, he fell down. उसी समय यूहन्ना ने वो गिर पड़ा। And the Lord said, "Fear not, I am the first and the last." उसी समय यीशु मसीह ने बोला, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। And verse 18 says, I died, I am alive forever, I have the keys of death and Hades. में हम पढ़ते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युवानों की जीवित रहता हूँ, और मृत्यु और अधोलोकों की कुंजियां मेरे पास ही है। That means I have all authority on earth and heaven and Hades. उसका मतलब है धरती पर और अधोलोक और मृत्यु और सब जगह के ऊपर मेरा अधिकार है। So verse 19 says, so write this to the churches, and also write to the churches that I am going to show you later. 19वां वचन, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाला है, उन सब को लिख ले। Verse 19, what you have seen is that is described in chapter 1. जो बातें हो रही है वो पहला अध्याय में है। And those things that are means the church age that is given in chapter 2 and 3. सॉरी, पहले जो अध्याय में जो लिखा हुआ बातों के बारे में इधर इसे लिखा है, जो बातें तूने देखी हैं। और सेकंड पॉइंट कैन यू से the things that are means now the church age is running. That is given in chapter 2 and chapter 3. और दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है, जो बातें हो रही है वो कलीसिया के युग में होने वाले
सब बातें हैं। Then thirdly, the things that are to take place after this. After this means after church age. और जो बातें इसके बाद होने वाला है करके लिखा है, इसका मतलब ये है कि कलीसिया के युग के बाद में होने। Any question on this chapter, please? कोई किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी 2.5 मिनट बाकी है हमारा सेशन का। कोई एक प्रश्न पूछ सकते हैं पहले। भाइयों में से किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो हम प्रार्थना करके समाप्त करें। अंकल, shall we? Okay then. 3. Tomorrow morning, I have another assignment. I forgot to tell. That is a usual class I take. So sorry, tomorrow I cannot take. So I ask you to read chapter 2 and 3 and come on Friday morning. कल हमारा सेशन नहीं होगा, परसों रहेंगे और आप लोग दूसरा और तीसरा अध्याय अच्छे से पढ़कर आना चाहिए। And please bring some questions in chapter 2 and 3. I will try to answer. दूसरे और तीसरे अध्याय का पढ़ने के बाद में उसके बारे में कुछ प्रश्न है तो लिख कर रखना और उसी समय परसों के दिन पूछ सकते हैं। May God bless you. मुकेश।